Hello students, today we are going to start our chapter number 12, Geographical Perspective on Selected Issues and Problems. यानी कि now we are going to discuss some problems which are facing by the human beings in our nature. Environment. It has been derived from the French word environ. It means to surround it. First, we are going to discuss about the environment because environment is the most important part of our life because in the environment we survive. That's why we discuss about the environment. Environment is a French word. It means this word is derived from the French language and it means to surround it. It means whatever around us is called environment. Environment refers to the sum of the total conditions which surround man at a given point of a space and time. It means those conditions which surround the human being at any place and in a specific time. This is called environment. It is a composite term for the conditions in which organisms live. Environment includes both biotic and abiotic substances. Environment में आपका तो जैविक और अजैविक यानी कि बायोटिक abiotic all contents are included. Overall we can say that environment is the totality of the physical, social, biological factors individually as well as collectively that comprise the natural and man-made surroundings. It means जो हमारा environment है उसमें physically, socially all things are included. Next है pollution. Environment जब degrade होना start होता है या उस completely या उसका कोई भी एक part जब वो degrade होना start करता है, this is called pollution. So this word is pollution has been taken from the Latin word. Environment word था वो कौन सी language का था? Differ, but जो आपका pollution word है वो Latin word से लिया गया है. Latin word है pollution meaning defilement from polluter to soil or defile. It means जो soil को dirty करता है उसको pollute करता है. This is called pollution. Pollution is an undesirable change in physical, chemical or biological characteristics. It means pollution के according जो changes आएगा वो कहाँ पे आएगा? Physical, chemical और biological characteristics यानी कि जो उसकी विशेषताएं हैं या जो properties हैं उनमें change आना. Of our air, land and water that is harmful, affect human life and that is desirable species. It means ये जो pollution है जो human life की ऊपर negative effect डालता है. Our industrial processes, living conditions, cultural assets, etc. Types of pollution, mainly जो pollution के types हैं, there are 4 types of pollution. First is air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Next हमारे पास point given है pollution के according हमने study किया there are the 4 types. But the pollutant, it means जो प्रदूषक. It is defined as any form of energy or matter that causes degradation and pollution in the existing natural balance of ecosystem. Forms of pollutant जो प्रदूषक हैं हमारे वो किसी भी फॉर्मेशन में हो सकते हैं solid, liquid and gases. So gaseous, liquid and solid formation. Reason of pollution. Pollution के reason क्या क्या है, क्या क्या इसको इफेक्ट करता है? The release of substances and energy from waste products of human activities. Pollution के जो causes हैं उसके अकॉर्डिंग जो human activities के अकॉर्डिंग जो भी मानव अपनी कार्य करता है, activities करता है, उनकी वजह से जो भी waste material होगा all these are called pollutant और उनकी वजह से ही हमारा environment क्या होता है? इफेक्ट होता है, polluted होता है. Causes of pollution. The waste materials resulting from human activities and disposal of human waste. जो human का जो waste है, जो human activities के थ्रू जो waste
हम रिलीज करते हैं और उसको हम डंप करते हैं। दिस इज द रीजन। नेक्स्ट है डैमेज इज क्योज्ड बाय द डिस्पोज्ड वेस्टेज। जो भी हम वेस्टेज है डिस्पोज करते हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। The circumstances where the effect of damage is met by third party। जो circumstances हैं तो इफेक्ट है डैमेज का वो किसको होगा, थर्ड पार्टी को। इट मींस वो नेचर प्लस एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल थिंग्स को क्या होगा, इफेक्टेड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है वाटर पोल्यूशन। वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर लाइफ। Firstly, air is also important because we can't survive without breathe, and water is also important because we can't survive so long without water. Pollution of water has cause for reaching implications. It is a serious problem in metropolitans like metropolitan cities. कौन सी हैं? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। It not only affects the water of rivers, tanks, lakes, but also the ocean water. It means जो water pollution है ये नहीं है कि just हमारा जो land water है या rivers हैं इनमें ही जो पानी है वो pollution हो रहा है। No, it affects the ocean water also. How can we say that the ocean water is also affected? Because the rivers dump into the oceans। जो भी pollution होगा सारा का सारा dump होके कहाँ जाता है, oceans। Next given है factors which affect the water pollution। Water pollution को affect करने वाले कौन-कौन से factors हैं? All these factors you have to describe in your notebook। First given है domestic sewage। Domestic sewage जो भी हमारे जो हम घर में एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, जो भी हमारा डंप है एक्स्ट्रा पानी है उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स के थ्रू, नाले के थ्रू कहाँ जाएगा वो डंप, रिवर में जाएगा, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रीज रिवर्स के बैंक पे ऑन द बैंक सिचुएटेड है तो उनका भी जो वेस्ट मटेरियल है कहाँ पे है, विदाउट प्योरीफाइंग उनको डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर पॉल्यूशन है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट गिवन है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। जो हम खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह, खाद बीज वगैरह यूज करते हैं, पानी का ओवरफ्लो उसको क्या करेगा, बहाकर दूसरे प्लेसेस पे जाके लेके जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी इफेक्ट होता है। किस तरीके से, जमीन में हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से जब रेन वाटर या जो भी हम इरिगेशन के लिए करते हैं तो पानी नीचे जाता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। उसके बाद है थर्मल पॉल्यूशन एंड मरीन पॉल्यूशन। पॉल्यूशंस ऑफ रिवर्स विद रैपिड अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन का अकॉर्डिंग क्या आएगा कि अर्बनाइजेशन है वो कंटिन्यू क्या है, इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। एंड industrialization, huge quantities of waste water enter rivers। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। पहले इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, पहले के कंपैरिजन में कंटिन्यू क्या है, प्रोग्रेस की फॉर्मेशन में, डेवलपमेंट की फॉर्मेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो वेस्ट वाटर है रिवर्स में एंटर होता है या डंप किया जाता है, उसकी क्वांटिटी भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। About 873 million liters per day of waste water drained into the Ganga before the Ganga Action Plan was initiated। गंगा एक्शन प्लान क्या है, प्लान इसके अकॉर्डिंग गंगा को प्योरीफाई करने के लिए, इट मींस उसके पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो एक एक्टिविटी चलाई गई है, एक प्लान बनाया गया था कि हम गंगा के जो पॉल्यूशन को है वो कंट्रोल में लेके आएंगे। तो उससे पहले वाटर कितना डंप किया जाता था, 873 मिलियन लीटर पर डे, यानी कि डेली। लेकिन उसके बाद अब कितना हो गया, 998 मिलियन लीटर पर डे ऑफ डर्टी वाटर फ्रॉम द सिटी ऑफ अहमदाबाद। दिस डाटा रिप्रेजेंट ओनली द सिटी अहमदाबाद। तो अब आप कंपैरिजन करके देखो कि ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि जहां से भी वो
फ्लो करके जाती है। रास्ते में जितने भी जो सिटीज हैं या विलेजेस हैं, तो उनमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो कितना इसमें डंप होता होगा। नेक्स्ट गिवन है, इट इज एस्टिमेटेड दैट पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन इंक्रीज फ्रॉम 375 ग्राम पर डे टू 490 ग्राम पर डे ड्यूरिंग 1971 से 1997. This increases along with the population increase. जो पॉल्यूशन है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। कैसे? क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो भी इंक्रीज होंगी, ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी तो वेस्ट मटेरियल भी साइड बाय साइड इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट गिवन है, this amount of total waste has increased from 14.9 tons per day to 48 tons per day. वेस्ट मटेरियल का जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई है 14.9 से लेके 48 टन पर डे के अकॉर्डिंग। इल इफेक्ट्स ऑफ अर्बन वेस्ट, इल इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं अर्बन वेस्टेज के। द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट चेंजेस फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल टू plastic and other synthetic materials which take much longer time to decompose. It means जो हम प्लास्टिक वगैरह या जो सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह यूज करते हैं जिनको डिकम्पोज होने में, इट मींस अपघटन होने में ज्यादा लंबा टाइम लगता है। ओके, लास्ट टाइम में अभी जो एक एक्टिविटी चलाई गई थी, प्लान बनाया गया था कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको बैन किया जाएगा। इसके कंपैरिजन में जो न्यूज़पेपर बैग या पेपर बैग या वी कैन से जूट बैग we have to use those bags degrade easily comparison to plastic bag, that's why। तो यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे वही है कि जो डिकम्पोज होता है वो लंबे टाइम में होता है। कौन सा? सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक बैग। When this solid waste is not collected and decomposed of efficiently and effectively, it attracts rodents and flies which spread disease, जिसकी वजह से डिजीज वगैरह भी एक्स्ट्रा क्या होती है, फैलती है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज ज्यादा इंक्रीज होते हैं। It also pollutes and degrades land and water resources. It means जो रीजन है किस चीज को इफेक्ट ज्यादा करता है, land pollution as well as water pollution also. Next are harmful for health. It means what is the waste effect on the health, यानी कि health के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। Inability to collect solid waste is a serious problem in metropolitan cities. About 90% of the solid waste is collected. सिटीज की मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अकॉर्डिंग 90% वेस्ट है वो कलेक्ट किया जाता है किस फॉर्मेशन में, सॉलिड फॉर्मेशन में। जो लिक्विड या गैसेस है वो अलग हो गया। बट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स अबाउट 30 to 50% ऑफ द वेस्ट जनरेटेड आर लेफ्ट अनकलेक्टेड व्हिच accumulate on streets, in open spaces between houses and in wasteland, contributing to serious health hazards. जो सिटीज या टाउन्स है उसमें 30 से 50% यानी कि 30 to 50% जो गार्बेज है वो ऐसे ही स्ट्रीट्स में बिखरा हुआ होता है, ओपन में खुले में पड़ा होता है, जो अनकलेक्टेड होता है यानी कि जिसको हम कलेक्ट करने में सक्षम नहीं होते, वी आर फेलियर। दैट्स व्हाई, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिजीज है वो स्प्रेड होगा, पॉल्यूशन है वो इंक्रीज होगा और हमारी जो हेल्थ के ऊपर भी काफी सारे इफेक्ट है वो होंगे, नेगेटिव इफेक्ट। इट इज रिमार्केबल दैट बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर आर इन्वॉल्व्ड इन कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। इट मींस जो सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इट मींस जो गवर्नमेंट जो एमसीडी वगैरह भी इसमें काम कर रही है प्लस जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, दोज आर आल्सो इन्वॉल्विंग दैम।
These wastes should be treated as resources and utilized for generating energy and comfort. इन जो हमारे वेस्ट मटेरियल है इनको हमें रिसोर्स की फॉर्मेशन में यूज करना चाहिए। किस तरीके से हम इसको रिसोर्स की फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं? जो गार्बेज या वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज हो सकता है उसको हम डिकम्पोज करके जो खाद वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरे वेस्ट है जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं? उसको हम एज ए रिसोर्स यानी कि उससे हम एनर्जी जनरेट करके उनको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब दिस टॉपिक इज completed. Next topic we are doing in our next class. Thank you.